It is a rare opportunity. Days when 40-year-old Ramesh Chamoli is able to lend a hand to his wife and father as they tend to their farm in the hilly village of Bagardhora on the outskirts of Dehradun, Uttarakhand's capital city. A sense of resignation prevails as he reminisces an earlier time when farming used to be a full-time, lucrative affair. उस समय के लोग खेती पे निर्भर रहते थे अधिकतर, तो खेती उस प्रकार से ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़्यादा समय देते थे खेती को। अब तो लोग बो देते हैं, उसके बाद कम महीना 2 महीने बाद उसको देखने जाते हैं, तो बीच में इतना देखभाल नहीं कर पाते, तो जो पैदावार में जो दिक्कत आई वो तो कम हो गई है उस हिसाब से, पहले के हिसाब से। Sitting at the foothills of the Himalayas, the state of Uttarakhand is known to be one of the most hazard-prone belts in Asia. Susceptible to frequent earthquakes, landslides and floods, making farming here one of the most complex and difficult life choices for those like Chamoli. जब बारिश हो रही है तो पहाड़ों से ऊपर से मिट्टी, बजरी, पत्थर बह के आते हैं, एक तो खेतों में आ जाते हैं। हर बार उसकी सफाई करनी होती है, बार-बार। एक तो फसल को वो नुकसान पहुंचाते हैं, और जो ये ट्रैक्टर आ रहे हैं आजकल हाथ से चलाने वाले छोटे-छोटे ट्रैक्टर, वो भी यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत हैं। एक खेत से अगर दूसरे खेत में रखना है तो कम से कम 4-5 आदमी की आवश्यकता होती है। उसमें कम से 120 किलो का वो ट्रैक्टर है। अब एक खेत से दूसरे खेत में रखने 4-5 लोग कहाँ से लाएंगे? दूसरा, खेत भी इस प्रकार से हैं कि हमारा 1-2 खेत यहाँ पर हैं तो बीच में फिर किसी और के हैं। 2-3 खेतों को छोड़ने के बाद फिर हमारा खेत है। अब बीच में किसी ने औरों ने कुछ और बो रखा है, हम उनके खेत से ले जा नहीं सकते। अब हमें वो अपने खेत में ले जाने के लिए दूर से घुमा के लाना पड़ता है, तो ये बड़ी समस्या है। Along with the usual challenges of the trade, however, the recent years of climate change and declining yields have only compounded the situation for hill farmers, driving them to seek alternative livelihoods for themselves. Most of the year, Chamoli takes up the odd job in the city, while his wife Sunita handles the farm back in Bagardhora. A few kilometers away in the village of Shuklapur, on this 1.5 acre farm plot, the air is decidedly different. Armed with a postgraduate degree in rural development, determined to change the narrative around hill farming and making the most of combining traditional knowledge with scientific technique, 29-year-old Ranjana Kukreti is in complete charge of her ancestral land, determined to usher in a new era for Uttarakhand's farmers. For her, as she points out unequivocally, becoming a full-time farmer had been a voluntary and necessary decision. बच्चों से पूछोगे अगर आप तो ये बोलते हैं कि हम डॉक्टर इंजीनियर से, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कहता कि हम किसानी करना चाहते हैं। इवन जो किसान का जो बेटा है या जो किसान है, जो बहुत बड़े लेवल के किसान है, वो भी अपने बच्चे को किसानी नहीं कराना चाहते। वो नहीं कराना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उनको जो भी प्रॉब्लम्स है खेती में या उनको उसमें फ्यूचर नहीं लगता है। लेकिन हमें इसलिए लगा क्योंकि हमें लगता है कि कोई अन्नदाता, इसलिए हम क्यों मतलब किसान को इसलिए कहा जाता है कि वो अन्नदाता है क्योंकि वो केवल एक और अपना ही पेट नहीं भरता या वो औरों का पेट नहीं भरता, वो सबका पेट भरता है। Kukreti is aware that she is perhaps one of the rare exceptions from her generation to walk this road. Most of her contemporaries, unable to sense a bankable future in farming, are today in the cities. This increased rate of migration from the hills to the plains, as Dr. Rakesh Kumar points out, has been one of the biggest concerns in states like Uttarakhand. For years, these states have been demanding a separate agricultural policy for hill farmers, one that could address issues specific to their community. माइग्रेशन का कारण ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी घटती चली गई और एग्रीकल्चर पहाड़ की बैकबोन है। 80% फैमिली एग्रीकल्चर पे ही सर्वाइव करती हैं। तो इसलिए अगर अच्छी पॉलिसी अगर हिल की सेपरेट पॉलिसी होगी तो निश्चित रूप से, और पॉलिसी का मेन पॉइंट ये होना चाहिए, हमने केवल एग्रीकल्चर को अकेले नहीं, एग्रीकल्चर के साथ ही एनिमल हस्बेंड्री अलग कभी नहीं किया जा सकता, जो हमने न जाने कैसे उसको अलग मान लिया। तो अगर उनको एक किस्म से लिंक करके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन चीज़ों को तीनों को लेके एक पॉलिसी बनाएं तो निश्चित रूप से
एक पहाड़ में माइग्रेशन को भी कम करेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेंगे। Primarily a family of rice cultivators, it was Kukreti's efforts that has today helped increase their paddy crop yield by 15%. In 2018, Kukreti was amongst 35 women farmers from India selected for the International Rice Research Institute in Philippines. From using a crop calendar to precision planting, today her farm is equipped with innovations and lessons she came back with. Not just rice and maize, Ranjana today has diversified to growing vegetables and fruits using integrated cropping techniques. A climate-controlled polyhouse and the presence of livestock in addition help ensure she is able to maximize returns from a small land holding to support her agricultural income. तो उन्होंने ये बताया कि रो टू रो और लाइन टू लाइन आपकी जो गैप है धान का वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने क्वालिटी सीड पे काम किया अपनी मदर को, वैसे वो हमेशा साफ़ ही सीड रखती हैं, लेकिन उसके बाद मैंने क्वालिटी सीड पे ध्यान रखा कि मम्मी एक सीड जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, तो वो उससे हमारा कैसा उत्पादन और बढ़ जाएगा। जितनी भी जगह है उसमें जो है अलग अलग पर्माकल्चर, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ही साथ बहुत सारी सब्जियों को लगा देना, चाहे उसमें आपके स्पाइसेस भी होंगे, आपकी थोड़ी वेजिटेबल होगी, इसमें अदरक हो गया और मिर्च हो गई, इस तरीके से। और साथ ही एक छोटा पॉली हाउस है मेरा 90 स्क्वायर का, तो उसमें जो है कि अभी हम लोगों ने जो है उसमें अलग अलग, उसमें भी हमने क्या मैंने सोचा, सबसे पहले मैंने इसे कुकुम्बर और टमाटो लगाए। पिछले साल मैंने ब्रोकली भी इंट्रोड्यूस करी, मतलब एक नया इंटरवेंशन ऐसे मैं इसे सोचती हूँ कि देखती हूँ, फिर अगली बार ब्रॉड करूँगी, उसको बढ़ा करूँगी। रुपाई वाले धान बोते हैं यहाँ पर सब लोग, और हाइब्रिड भी लगाते हैं, यहाँ लोग ट्रेडिशनल बीजों को रखते हैं, हाइब्रिड भी लगाने लगे अब। Over the last few years, Kukreti has been working towards turning her small landholding into a model farm for hill farmers in her community. जो गेहूँ या जो धान हमारा 10 महीने के लिए होना था, वो हमारी कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि हमारा एक अच्छा बीज हमने नहीं रखा। Today she is already a change maker, sharing knowledge and experiences, especially with the women workers on her farm and through training sessions for Uttarakhand's larger farming community. हाँ। 55-year-old Sheila Devi has been working as a farm help with Kukreti's family for more than 3 decades. In her own marginal landholding, Sheila Devi now uses some of the same techniques she has picked up here for better yields. बस अभी तो बेटा यही सीख रहे हैं, धान निकलना, घास काटना, ऐसा ऐसा सीख रहे हैं बस। और ज़मीन जो है तो मतलब थोड़ी है, तो अभी तो हमारी ये समझ लो, गेहूँ बोते हैं, कभी घास बोते हैं, चरी बोते हैं, बरसी बो लेते हैं, चारा मत, कभी धान भी लगा लेते हैं। खेत हमारा थोड़ा है, आधा बीघे तक ना, तब उसमें कभी घास बो लेते हैं, कभी मतलब धान भी लगा लेते हैं, थोड़ी साग सब्जी भी 1-2 क्यारी भी हो जाती हैं। One of the biggest hurdles for farmers like Sheila Devi continues to be the lack of ownership rights. Despite contributing over 65% of the agricultural workforce, women in rural India are unable to avail institutional credit because the land is not in their names. An impediment that Kukreti is planning to overcome through forming a women's cooperative in Shuklapur, through which they can access government and support schemes. एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो महिला ही एग्रीकल्चर की बैकबोन है, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि पुरुष माइग्रेट कर जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो महिलाएं दिन भर एग्रीकल्चर को देखती हैं। अब उसमें यह है कि इनको एग्रीकल्चर का अगर ट्रेनिंग अच्छे तरीके से हो, कुछ इनको लोन की सुविधा हो, क्योंकि इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं तो लोन का लिए तो फिर लैंड उनके नाम पे होते हैं तो वो नहीं हो पाता, और टेक्निकल बैकअप नहीं। जब मैं काम करता था तो उसमें मुझे लगता था, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि हमारे पूरे उत्तराखंड में महिला सशक्त हैं, बातों को समझती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, चाहे वो गांव बचाओ आंदोलन रहा है, चाहे चिपको मूवमेंट रहा है, कोई भी रहा है, महिलाएं अवेयर हैं। Providing just this support is one of Kukreti's immediate goals. She is also working closely with the International Rice Institute to bring in new interventions for the native paddy that her family has been growing for generations. It is her firm belief that only by combining traditional techniques with new age science can one discover the path to sustained change.
and with it, the promise to better the lives of her fellow farmers. हमें ट्रेडिशनल आगे आने वाले जनरेशन को भी बताना है कि ये चीज़ें हुआ करती थी, आज हम ही ख़त्म कर देंगे तो फिर आगे उनको कैसे मिलेगा। तो उसी से मेरी उसको लेके मेरी ईरी से बातचीत हो रही है कि किस तरीके से क्या वो कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं इस बीज को लेके या कुछ भी इसको लेके। दूसरा जो मेरा है, जो हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं जो जिनके ग्रुप्स अभी नहीं बने हैं, तो उसके चाहे उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, तो उसमें क्या है कि एक छोटा सा ग्रुप्स बना के कि जो भी हमें थोड़ा कुछ फंडिंग सपोर्ट कर ले, जो कि वो क्योंकि वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो किस तरीके से उनका सपोर्ट हो सके और हम मिलके जब हम एक यूनिटी होंगे तो शायद हम कुछ और भी आगे अपनी बात को पहुंचा सकेंगे और हम आगे और भी काम कर सकेंगे।